ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हरि ओम। विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि श्लोक नंबर 419। वैराग्यस्य फलं बोधः, बोधस्योपरतिः फलम् स्वानन्दानुभवात् शान्तिः एषैव्योपर्यतिः फलम्। संसिद्ध काल तो হয়ে গেছে। 420 420 420। वैराग्यस्य फलं बोधः, बोधस्योपरतिः फलम् स्वानन्दानुभवात् शान्तिः एषैवोपरतिः फलम्। वैराग्यस्य फलं बोधः, बोधस्य फलम् उपरतिः स्व आनंद अनुभवात् शांतिः एषा एव उपरतिः फलम्। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। The fruit of dispassion is knowledge. Vairagyasya phalam bodha. Why we need dispassion? Why we need vairagya in our life? Why the Guru Parampara, Shastra Parampara always gives us inspiration to be dispassionate. Vairagyavan bhava. Even when Swami Vivekananda is first getting introduced with Mother Kali, because he did not believe that in the idol, in the statue, there may be any Bhagavan. It's only doll or idols. But by the grace of Guru, he got that feeling that this is not a statue. He got a feeling that this is something different, the most divine. And he started praying, Ma, give me knowledge, give me dispassion, give me devotion. Ma, my ज्ञान दाओ, विद्या दाओ, विवेक दाओ, वैराग्य दाओ. And if you can remember that when that Grantha started,
Sorry for the interruption. ज्ञान दाओ, विद्या दाओ, विवेक दाओ. That sadhana chatushtaya was the first and foremost qualification to get knowledge. Why we are here? To remove our ignorance about our knowledge. Gyan Dao, give me knowledge means give me knowledge how to remove my ignorance upon the knowledge. We are Jnana Swarup. Clear? According to Upanishad, हम लोग सब ज्ञान स्वरूप है. But because of some shortcomings, some ignorance, we don't know what we are. We can get our knowledge. आज खूब इंटरनेट. वैराग्यस्य फलम बोधः, बोधस्य फलम उपरतिः. जिनका स्वरूप बोध हो गया है, उनका डिटैचमेंट इज वेरी इजी. जो व्यक्ति बहुत ही धनी है और घर में हीरा जहरत मणि माणिक्य बहुत है, दैट पर्सन विल नॉट गो फॉर थोड़ा कांच के टुकड़े के लिए. The poor people who can't afford the real solitaire diamond, they go to the local fair or imitation shop to purchase something which appears like solitaire. लेकिन जिनके पास वो वस्तु है, वो उसके पीछे दौड़ेगा नहीं. So बोधस आनंद की फल है शांति. एषा एव उपरतिः फलम. यही उपरति और जिनका विषय वासना चला गया, ये शांति ही उसका फल है. The fruit of dispassion is knowledge. That of knowledge is withdrawal from sense pleasure. The fruit of this withdrawal is the experience of the blissful self, and peace is the result of experience. The result that will accrue to the personality as an individual starts his sadhana are enumerated in a logical sequence. First, Vairagya has been spoken of. वैराग्य का मतलब क्या है? What is the meaning of or impact meaning of vairagya?
Now, in our life, two things come. One is prayer, another is Shreya. So, in Kathopanishad, that mantra is there. Something comes to our life which is pleasurous and appear as apparent good. Like when Ravana came, he came in the disguise of a monk. Likewise, the pleasurous thing come in the disguise of good. It gives temporary pleasure also. क्योंकि हम सब लोग सुख के पीछे दौड़ते हैं, कौन दुख चाहते हैं? इसीलिए तो इतना वैभव, इतना दुकानदारी हम लोगों को बहुत तरीका से सुखी करने के लिए, टेस्ट के हिसाब से, रहने के हिसाब से, सोने के हिसाब से, पहनने के हिसाब से, कितना सुख हम लोगों का हो सकता है। सो प्रेय है और श्रेय है। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ते हैं, those who go to the guru, आचार्य, आचार्य के पास जो भी आते हैं, चाहे इन ऑनलाइन और ऑफलाइन, they are having some sort of desire to get liberation. उस तत्व को जानने की थोड़ा सा वासना के विहीन ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा काम क्या है? हम इधर जो सुन रहा है, how I can maintain the same knowledge in our whole day transaction, that is our challenge. जो व्यक्ति उसमें कामयाब हो गया है, वो तुरंत समझ लेता है कि कौन से मेरे लिए श्रेय है और कौन से मेरे लिए प्रेय है। और जो व्यक्ति के अंदर ऐसे बोध प्रतिष्ठा हो गया है, वो सिर्फ श्रेय का ही चुनते हैं। जिनको पहले विष की तरह लग सकता है, लेकिन जिनका परिणाम होता है अमृत समान। जैसे देखिए, हम लोग जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं या घर में घरेलू कुछ, ये खाने में पीने में अच्छा नहीं है, बट इनका जो फल होता है ना, इट गिव्स अ वेरी लॉन्ग टर्म गुडनेस इन आवर बॉडी, माइंड, हेल्थ, एवरीथिंग। सो अभी और सूक्ष्म क्या है? प्रेय को त्यागना, श्रेय को अपनाना। ये प्रेय मतलब क्या? जो वेदांत पढ़ते हैं उनके पास प्रेय की शब्द का अर्थ एकदम क्लियर है। प्रेय मतलब अनित्य वस्तु, श्रेय मतलब सत वस्तु, एक ही ब्रह्म। प्रेय की मतलब विच इज apparently प्लेजरस लेकिन अनित्य। और नित्य क्या है? जो शाश्वत है, जो चिरंतन है, जो सत्य है, इसे ही हम लोग नित्य बोलते हैं। जो व्यक्ति धर्म के पथ में आए नहीं, what do they say? That moral values, moral perfection, moral developments, यही नित्य वस्तु है, यही मेरे लिए भगवान है। आप जब आपके दोस्त के सामने जाएंगे जो बिलीव नहीं करते ईश्वर को, धर्म को, धर्म पथ को, गुरु को, उन लोग बोलते हैं देखो मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोला, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, यही मेरे लिए भगवान है।
मैं सुबह उठता हूँ, गाय को खिलाता हूँ, लोगों को खिलाता हूँ, जितना कमाता हूँ उसमें सबके लिए मैं सोचता हूँ, यही मेरे लिए धर्म है। बट दे आर मॉरल वैल्यूज, दे आर नॉट सत्य वस्तु. So, does or do the moral values are not good? Of course not. इनका भी प्रयोजन है. Those moral values are basic dharma. उस दिन गीता ज्ञान यज्ञ में मैंने बताया कि एक विशेष धर्म होता है और एक साधारण धर्म. So those moral values are sadharan dharma, which is common, which should be common for all human beings. When you can continue it with your moral values, then you can understand that एकमात्र नित्य वस्तु है सिर्फ ब्रह्म और भगवान. तो मॉरल वैल्यूज का प्रयोजन क्या है अगर ये नित्य वस्तु नहीं है तो? Those moral values are required for चित्त शुद्धि. चित्तस्य शुद्धये कर्म. और अनित्य वस्तु का भी प्रयोजन है. अनित्य वस्तु का भी, इट इज समटाइम्स इनएविटेबल इन आवर लाइफ टू कंटिन्यू द जर्नी ऑफ दिस बॉडी. लाइक खाना, खाना, पहनना, सोना, ये सब वस्तु का प्रयोजन है, लेकिन ये सब अनित्य है. हम लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में प्रयोजन है क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. He doesn't need dharma. It is not like that. धर्म सबका जरूरत है, क्योंकि धर्म विहीना पशु ही समाना. धर्म के सिवा मनुष्य और पशु में फर्क नहीं है. सिर्फ धर्म ही मनुष्य और पशु को अलग कर देता है. तो कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है, ये हम लोगों को कौन सिखाते हैं? धर्म सिखाते हैं. अर्थ क्या है? अर्थ मतलब पैसा नहीं. अर्थ मतलब sorry for the interruption. Our mission got a lot terrible internet problem. I don't know why. আরে শান্তনু চলে এসো, শান্তনু. ক্লাস শুনতে শুনতে ওটা কি? ओके. काम क्या है? काम है लेजिटिमेट डिजायर, हमारा वासना. आवर वासनाज शुड बी कंट्रोल्ड. हम लोग खुद को कंट्रोल करना चाहते हैं, बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, बहुत कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं. बट मेन थीम इज आवर डिजायर. जो व्यक्ति डिजायर को कंट्रोल कर सकते हैं,
मतलब मन को शासन करना। ये शासन का इतना जरूरत है। विदाउट शासन यू कैन मैनेज द थिंग्स। सपोज एट योर होम ऑल्सो, if there is no discipline in maintaining the thing and distributing the thing and in acquiring the thing, you can't expect a good samsar also. घड़ा की चारों ओर आपका होल्स है, छिद्र है, पानी रहेगा नहीं। पानी रहना मतलब the desire for the drinking will not be meet up, will not quench. छोटा छोटा कामना को बृहत्तर कामना के लिए त्यागना पड़ेगा। मेरा ईश्वर लाभ होगा, ये भी कामना की अंतर्गत है, लेकिन ये बड़ा कामना है। धर्म हम लोगों को हर वक्त वैराग्य की ओर दौड़ा रहा है। सो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है? मोक्ष है हमारा लक्ष्य और धर्म उनका सूत्र है। धर्म विहीन व्यक्ति मोक्ष लाभ नहीं कर पाए। धर्म मतलब moral values, love to everyone else, respect to the elders, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसे हमारे भगवान को हम सजाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, क्यों ना ऐसे श्रद्धा करते हैं गुरु और आचार्य के प्रति, ऐसा ही श्रद्धा। श्रद्धा ना होने से क्या होगा? विवेक चूड़ामणि, किताब खरीद लूंगा, पढ़ूंगा। आप तो उसी से ही बोल रहे हैं, पढ़ के क्यों नहीं होगा? श्रद्धा के सिवा ज्ञानम विल नॉट बी प्रेसिपिटेटेड। दिस इज द बेसिक पॉइंट। आप देखेंगे हमारे ज्ञान लाभ नहीं होता है श्रद्धा की अभाव से। क्योंकि श्रद्धा की अभाव जब होता है ना, तब आई कैन टेक द थिंग्स एज इट इज एंड होल। हम उसमें भी ट्रिम करते हैं, which is little bit conducive for me, we accept what is not possible for me। हम लोग बोलते नहीं भाई ये तो संभव नहीं, स्वामी जी बोल सकते हैं, स्वामी जी तो सन्यासी है और व्यासपीठ में से कितना कुछ बोल देते हैं। उनका क्या पता है संसार क्या है, ये क्या है, वो क्या है। then we start trimming the things। श्रद्धा की अभाव। आप लोग सोचिए, जे हम लोग वेदांत इतना दिन सुन रहे हैं, फिर भी ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? The basic line is that lack of moral values properly. Lack of moral values. Clear? वैराग्यस्य फलम बोधः। ये मुझे सिर्फ श्रेय वस्तु ही चाहिए। मैं सत्य की अनुसंधान करूंगा, सत्य ही मैं चाहता हूं। वैराग्य की फल क्या है? वैराग्य की फल है बोध, ज्ञानम। और बोधस्य उपरति ही फलम। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, जितना कुछ आ रहा है, हो रहा है, आई एम खुश। लेकिन
ऐसे मत कीजिए कि मेरे जैसा आपको भी होना पड़ेगा। आई डोंट ईट और टेक शुगर, लेकिन आपका तो ये पसंद है। आई डोंट ईट पर्टिकुलर फ्रूट, ये मुझे सूट नहीं करते। आई कांट फोर्स यू दैट यू हैव टू बी लाइक मी। व्हाई? जस्ट लाइक एट नाइट आई टेक जौ आटा की रोटी, क्योंकि आटे का रोटी मुझे जमता नहीं। लेकिन जो लोग बचपन से खाते आ रहा है और तंदुरुस्त है, मुझसे ज्यादा स्वस्थ है, व्हाई शुड आई फोर्स हिम दैट यू हैव टू डू दैट? द प्रॉब्लम इन लाइफ, यू नो, जब हम सब एक दूसरे को मेरे जैसे बनाना चाहता, my son will be like me, my daughter will be like me, because I am failure, मेरा husband तो मेरे जैसा नहीं हो पाया और मेरा wife भी मेरे जैसा हो नहीं पाया, so I will start forcing my son and my daughter and my successors. हम लोग भूल गया है कि मैं भी एक प्रोसेस से ये मिला है। How I was, the life has taught me that how, what is good and what is not. I can tell once, let the life be as it is. धर्म का अर्थ ये भी है to accept the thing as it is, to accept the life as it is. Each and every one is in the process. भगवान सबको ले जा रहा है, मैं नहीं लेके जा रहा। ये भी उपरति का अंतर्गत है, that I will not try to change others. I will try to change myself. I will put forth whole effort to change myself. Change myself का अर्थ क्या है? Suppose from me someone is getting sadness, किसी को दुख हो रहा है, I have to change myself. क्यों इनको दुख हो रहा है? That should be our attitude. That is also उपरति। उपरति का मतलब खाना छोड़ना, पोशाक छोड़ना, सुख का वस्तु छोड़ना, ये नहीं। उपरति का अर्थ मेरा भावना को भी छोड़ना। I have to change my lifestyle, my thought process. Why people will be like me? Each and every being is unique in their own way. That is also उपरति। इस उपरति होने से ही आत्मज्ञान होता ही है। Bhagavan Shankaracharya ji has confirmed us that if you are having proper vairagya, दिखाने वाला वैराग्य नहीं, आज मेरा एकादशी है, आज मेरा एकादशी है, आज मेरा, अरे लोग बहुत जबरदस्त करेगा कि स्वामी ये लीजिए ना, क्या है, अब तो हर रोज लेते। नहीं, आज मेरा एकादशी, बस। और वो बोलने में भी शर्म आएगा। यू विल बी वेरी मच अशेम्ड। अरे भाई, आज मैं मेरा व्रत के बारे में बोल दिया। ये व्रत गर्व करने का वस्तु नहीं, इट इज फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन। इसीलिए गुरु लोग हर वक्त बोलते हैं, ये साधन जीवन में यू मेंटेन गोपनीयता, सीक्रेट। सीक्रेसी मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो दिखा नहीं सकता, नहीं। সাধন পথ যত হবে গুপ্ত, তত হবে পোক্ত। To maintain that secrecy, to means secretness, to maintain is sacredness, इनका पवित्रता रक्षा करने के लिए। जैसे हम लोग हमारे माँ बहन की पवित्रता रक्षा
डोंट स्ट्रेस द एग्जाम्पल। हाँ, हम लोग अंदर महल बनाते थे कि ये हमारे घर की सबसे पवित्र वस्तु है, सो आई विल प्रोटेक्ट देम। डोंट स्ट्रेस द एग्जाम्पल। ये अच्छा नहीं था, ये बुरा नहीं था, जस्ट टेक द थीम। पवित्रता रक्षा करने के लिए ये अंदर महल का कॉन्सेप्ट। बाद में वो बहुत बड़ा हो गया, देन इट बिकेम टॉर्चर एंड ऑल दोस। डोंट स्ट्रेस द एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस थिंग्स। ये गुप्त भाव जो है, इनको पोक्त बनाने के लिए, इनका पवित्रता रक्षा करने के लिए। सो आत्मज्ञान लाभ करने से क्या होगा? अपूर्णता चला जाएगा। आप देखिए, पहले मैं खुश नहीं हूं दूसरे से, और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? दूसरे लोग हमारे लिए भी खुश नहीं है। बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू चेंज अदर्स, एंड आई थिंक इफ दे आर चेंज्ड आई विल बी हैप्पी। हाँ, मेरा नेबर अभी सुधर गया, आप गंदगी रास्ते के इधर उधर नहीं फेंक रहा है, एकदम गाड़ी आने में फेंक रहा है या निर्दिष्ट स्थान। हाँ, अभी मेरा बेटा, स्वामी जी बोलते हैं ना, ऐसे ही हो गया। ये अपूर्णता की भाव। आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू चेंज, करेक्ट अदर्स, बिकॉज मैं अंदर से इतना खोखला हूं, इतना खाली हूं, इतना ट्रॉमा है मेरे अंदर। आई एम रियली अपूर्ण। लेकिन मुझे लगता है मैं पूर्ण हूं। मैं ध्यान में बैठता हूं, 1.5 घंटा 2 घंटा जब पूजा में बिताता हूं, और लोगों को पूरा दिन भर डिस्टर्ब करता हूं। ये नहीं, वो नहीं, ये करो, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं क्यों किया। आप संसार देखो, आप लोगों को सेम प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ अपूर्णता। पूर्णता इज द सिंबल ऑफ ज्ञानम। वैराग्य होने से ही बोध जन्म आता है, बोध का जन्म होता है। सो फर्स्ट स्टार्ट विद वैराग्य। समथिंग यू डिड नॉट गेट, इट्स ओके। जो नहीं मिला भाई, वो तो अनित्य ही है। जो मिला वो भी अनित्य है, और जो नहीं मिला वो भी अनित्य है। सिर्फ वस्तु नहीं, लोगों के व्यवहार भी, व्यवहार से भी वैराग्य लाओ। कि वो मुझे देखकर आज पता है, मुझे मुझे देखकर मुस्कुराया भी नहीं। अरे क्यों भाई मुस्कुराएगा? इससे भी वैराग्य। एज इट इज, ही डिड नॉट लुक एट मी, एक्सेप्ट इट एज इट इज। मैं जो नहीं चाहता हूं वही मेरा नौकर, बेटा, बेटी, पोता, पोती किया, ठीक है, एक्सेप्ट इट। मैं खुश हूं। आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसे होता है। देखिए, भगवान हम लोगों को शांति का रास्ता दिखा रहा है। हम लोग अनित्य वस्तु से शांति को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम लोग पूरा जीवन भर अशांति में बिताते हैं, और बोलते हैं नहीं स्वामी जी, आई एम हैप्पी, आई एम इन टोटल ब्लिस। अच्छा, थोड़ा उनका घर में उनके साथ जो लोग डील करते उनसे पूछो। आंख बंद करने से सब लोग परमहंस हो जाता है, आश्रम में आकर सब लोग भव्य बन जाता है। उनसे, घर वालों से पूछो वो क्या करते हैं घर में, देन आपको पता चले व्हाट हैपेंस। और क्यों होता है? वैराग्य की अभाव से होता है। वैराग्य से चालू करो। वैराग्य इज द फर्स्ट स्टेप, सूत्र ऑफ एनीथिंग एल्स, ऑफ मोक्ष। हरि ही ओम।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम टू जेटली जी, हरि ओम टू विजय अम्मा, हरि ओम टू पोद्दार जी, हरि ओम टू उषा घोष अम्मा, हरि ओम टू शेखर जी, हरि ओम टू इला अम्मा, हरि ओम टू सौम्या अम्मा, हरि ओम टू सुनीता अम्मा and Mr. Marwa ji, हरि ओम टू आरजा जी, हरि ओम टू अनामिका अम्मा, हरि ओम टू कृष्णा पाजा अम्मा, हरि ओम टू रिमिका अम्मा, हरि ओम टू घोष बाबू, हरि ओम टू मिस्टर एंड मिसेस चट्टराज जी। आज थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ इंटरनेट के लिए, ये बीच बीच में होता है। आप जानते हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस में कभी कभार इंटरप्शन हो जाता है, क्लास कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि तब पूरा के पूरा ऑनलाइन लेता हूँ। आज तो ऑफलाइन लोग भी है ना, तो इसीलिए आई एम सॉरी फॉर दैट inconvenience, but I am helpless. We are enslaved with our things. हरि ओम। आज के क्लास जो भी है समझ में आया तो आई ट्राइड माई बेस्ट। हरि ओम। आज गीता क्लास है 11 बजे। प्लीज ट्राई टू अटेंड। आज मंगलवार है। पोद्दार जी, अग्रवाल जी, घोष बाबू, जेटली जी, उषा अम्मा, ये सब हमारे लोग हैं। तो अनामिका अम्मा, कृष्णा पाजा अम्मा, तो शेखर जी, विजय अम्मा, प्लीज ट्राई टू अटेंड गीता क्लास। हरि ओम। हरि ओम।